Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is fluid statics. In previous lectures, we have discussed fluid properties like density, specific weight, specific gravity, specific volume, viscosity, surface tension. We have discussed their basic definitions and their units in different systems and have performed various and have solved various numericals in online session as well as in discussion session. Then we have discussed various types of fluids according to viscosity. We have studied types of viscosities and types of fluids according to viscosity, like real fluid, ideal fluid, and Newtonian fluid, and an important law, Newton's law of viscosity. In today's lecture, we will discuss a new concept, that is fluid statics. We will discuss Pascal's law, and a new term will be introduced, that is pressure head. Then we will do some numericals related to that term, and types of pressure and various pressure measuring instruments will be discussed in detail, and different numericals will be solved related to these topics. So now let's start with the basic definition. What is fluid statics? Statics means at rest. Fluid statics. Fluid statics means fluid at rest. What is the meaning of at rest? At rest means that there are no shear stresses. The only force in action is normal force due to pressure. कोई shear stresses इन्वॉल्व नहीं होंगी. shear stresses के कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर हैं, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन को लास्ट लेक्चर में. तो अगर कोई ऐसा फ्लूइड जिसमें कोई shear stresses इन्वॉल्व ना हो, फ्लूइड एट रेस्ट हो, तो जो ओनली फोर्स होगी वो प्रेशर की वजह से होगी. और प्रेशर से आप फेमिलियर हैं. व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, or the amount of force exerted on a unit area of a substance or on a surface. Mathematically, हम इसको लिख सकते हैं P equals F over A. और अगर हम स्मॉल एरियाज की बात करें हैं, डिफरेंशियल एरियाज की बात करें, तो हम इसको P equals DF over DA भी राइट कर सकते हैं. यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स के यूनिट से आप फेमिलियर हैं. फोर्स के यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में न्यूटन, और एफपीएस सिस्टम की बात करें तो पाउंड्स. एंड एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट. तो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो प्रेशर के आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, which is commonly known as Pascal, or pound per feet square, and commonly used units in FPS system is PSI, or pound per square inch. Principles about pressure. Two important principles about pressure were described by Blaise Pascal, a 17th century scientist. Number one, pressure acts uniformly from all directions on a small volume. Of a fluid. Pressure acts uniformly from all directions on a small volume of fluid. इसको भी हम डिस्कस करेंगे. Number two, in a fluid confined by solid boundaries, pressure acts perpendicular to the boundary. एक फ्लूइड सरफेस है, इसके अंदर एक पॉइंट को लोकेट किया गया है, इसमें जो प्रेशर होगा वो यूनिफॉर्म होगा इन ऑल डायरेक्शंस. और अगर आप बाउंड्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फर्नेस डक्ट है रेक्टेंगुलर शेप की, तो बाउंड्रीज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे फ्लूइड जो है वो एक्ट कर रहा है. सो इट इज़ अ फिगर शोइंग डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड प्रेशर ऑन बाउंड्रीज. अगर ये पाइप की बात हो रही है, पाइप या ट्यूब है, तो इसमें आप देखें ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है हर पॉइंट के ऊपर. अगर ये ऐसे आपके पास पाइप है, पाइप इनसाइड अनदर पाइप है, या ऐसे बीच में से हॉलो है, तो इसमें आप देखें प्रेशर इस बाउंड्री और ये इसकी वाली जो इनर सर्कल है, इस दोनों की बाउंड्री पे एक्ट करेगा. सो सिमिलरली डिफरेंट एग्जांपल्स आपको शो हुई हैं डैम, स्विमिंग पूल और फ्लूइड पावर सिलेंडर की, जिसमें शो हो रहा है कि फ्लूइड की डायरेक्शन, प्रेशर की डायरेक्शन क्या होगी.
सो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था, प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन विच इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। इसको अगर हम थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहें तो आपके सामने ये एक फिगर है। दिस इज अ वेज शेप्ड एलिमेंट ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। इसमें आपको दो एक्सेस शो हो रहे हैं। ये यहाँ पे एक्सेस को लेबल कर दिया है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, और थर्ड एक्सिस जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मींस के थर्ड एक्सिस जो है वो आउट ऑफ दिस स्क्रीन आपको अज्यूम करना होगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो जो फोर्सेस लग रही हैं उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। कंसिडर अ वेज शेप्ड एलिमेंट ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, थिकनेस इज डेल्टा वाई perpendicular to plane of paper. Let P is average pressure in any direction. Px and Pz are average pressure in horizontal and vertical direction. No shear force is involved since the fluid is at rest. Since the element is at rest, so the sum of force component on element in any direction must be equal to 0. आपके सामने फिगर है, जैसे मैंने बताया था ये आपके एक्सेस हैं एक्स, जी एंड वाई इज आउट ऑफ दिस प्लेन। सो यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज हैं वो लिखी हुई हैं। दिस इज डी एक्स, डी जैसे मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था डिफरेंशियल वैल्यूज के लिए हम डी का जो सिंबल है वो यूज करेंगे, डी एक्स। वर्टिकल डायरेक्शन में डी जी, दिस इंक्लाइन डायरेक्शन में डी एल, और थिकनेस जो इधर शो नहीं हो रही क्योंकि 2D फिगर है, थिकनेस थर्ड डायमेंशन होगी डी वाई। और चूंकि हम फ्लूइड स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें कोई शियर स्ट्रेसेस नहीं है, फ्लूइड एट रेस्ट है। जब फ्लूइड एट रेस्ट है तो इसमें हम समेशन फोर्सेस को 0 के इक्वल कंप्यूट कर लेंगे। वो किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्जांपल समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, ये फोर्स है और ये वेट की वजह से फोर्स है, और एक फोर्स आपको ये दिखाई दे रही है, पी प्रेशर के लिए है, और जब उसको उसके रिस्पेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, बिकॉज प्रेशर इक्वल्स फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स इक्वल्स प्रेशर इनटू एरिया। सो ये एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पी एक्स और इसका एरिया होगा डी वाई इंटू डी सी। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है दिस इज पी जी, क्योंकि आपका एक्सिस वर्टिकल में जी है, पी जी, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया है डी एक्स इंटू डी वाई। ये आपका जो प्रेशर है पी इंटू डी एल इंटू डी वाई, और ये डाउनवर्ड कंपोनेंट ये जो आपको वर्टिकल नजर आ रहा है ये वेट की वजह से है। वेट कहाँ से आएगा? स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन से आप फेमिलियर हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो वेट इज स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, सो स्पेसिफिक वेट इज गैमा एंड वॉल्यूम इज 1/2 dx dy dz। सो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 जब हम करेंगे, इधर इस फेस पे आप देखें यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कोई नहीं है, इग्नोर हो गया। यहाँ पे आप देखें एक्स, दिस इज कम्प्लीटली एक्स, पी एक्स डी वाई डी जी, और अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस साइन लग रहा है। ये इंक्लाइन फोर्स है, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, इसके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स होंगे। इसका एक्स कंपोनेंट है पी कॉज एल्फा डी एल डी वाई। फिगर आपके सामने है, ये एंगल बन रहा है अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, सो डी जी इक्वल्स डी एल कॉज एल्फा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देख सकते हैं P इक्वल्स पी एक्स। सिमिलरली अगर हम समेशन एफ जी इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे आप देखें आपके सामने जो फिगर है पी जी डी एक्स डी वाई, अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। दिस इज दिस फोर्स, इस फेस पे कोई फोर्स नहीं है, और ये एक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगी, ये लिखिए 1/2 गैमा डी एक्स डी वाई डी जी। और ये जो फोर्स जिसका हमने पहले एक्स कंपोनेंट लिया था इसको रिजॉल्व किया, इसका आप
y कंपोनेंट लेंगे, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, p dl dy साइन अल्फा। थर्ड टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो हायर ऑर्डर है, स्मॉल वैल्यूज आएंगी। सो अगेन फ्रॉम द फिगर dx इक्वल्स dl साइन अल्फा, तो अपॉन रिजॉल्विंग दिस वी गेट p इक्वल्स pz। सिमिलरली अगर आप करना चाहें तो पी वाई के लिए भी इसको कर सकते हैं, और उसमें भी आप देखेंगे पी विल बी इक्वल टू पी वाई। थस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमने देखा P इक्वल्स टू पी एक्स, पी इक्वल्स टू पी जी एंड P इक्वल्स टू पी वाई। सो प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा। So this is Pascal's law. Now next important definition or important concept is variation of pressure in a static fluid. This is called hydrostatic law. It states rate of increase of pressure in vertical downward direction must be equal to product of specific weight of fluid at that point and depth. इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं P इक्वल्स गैमा H और H इक्वल्स P ओवर गैमा। Pressure expressed in height of fluid. The term elevation means vertical distance from some reference level to a point of interest and is called Z. Fluid mechanics में हम Z की जो term है या Z का जो symbol है वो use करेंगे elevation के लिए। A change in elevation between 2 points is called H. Elevation will always be measured positively in upward direction. In other words, a higher point has larger elevation than a low point. Figure shows illustration of reference level for elevation. Simple सी एक figure आपके सामने है जो show कर रही है relationship between pressure and elevation. This is water surface. These are two submarines. ये आपका reference level अगर change हो रहा है तो z की value change हो रही है। For example, in this figure आपने ये channel bed को reference लिया हुआ है, जिसको आप reference ले रहे हैं वहाँ z की value 0 है। This submarine is plus 60 meter from reference and this water surface is plus 150 meter from reference. In this figure, you have taken this submarine as a reference. So this its elevation will be 0 and channel bed will be minus 60 meter because it is in downward direction from the reference value. So it will be minus 60 meter and channel surface is plus 90 meter from the reference. Pressure head, it is a new term, it is a new terminology. What is it? Pressure expressed in terms of height of fluid, H equals P over gamma. जब आप फील्ड में जाएंगे या जब आप कोई वाटर सप्लाई के नेटवर्क्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे या प्लम्बिंग सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपको लिखा होगा वाटर का प्रेशर 20 फीट ऑफ वाटर का प्रेशर है। तो आपने हैरान नहीं होना है कि ये तो लेंथ के या एलिवेशन के यूनिट्स हैं, ये प्रेशर के साथ किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली प्रेशर हेड विच इज P over gamma. H equals P over gamma represents the energy per unit weight stored in the fluid by virtue of pressure under which the fluid exists. This is also called elevation head or potential head. So ये जो टर्म्स बेसिक इसमें यूज हो रही हैं इनको आपने याद रखना है। प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड, पोटेंशियल हेड, ये एक ही चीज़ के नाम है। सिंबल इसका है H एंड H इक्वल्स P ओवर गैमा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंटेनर है, इसमें कोई भी लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक वेट गैमा है। इस पॉइंट पे अगर आप बात कर रहे हैं H इक्वल्स P ओवर गैमा, या प्रेशर अगर आपने कैलकुलेट करना है इस किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है तो P विल बी इक्वल टू गैमा इंटू H। जो भी लिक्विड होगा उसके स्पेसिफिक वेट को उतनी एलिवेशन से या उतने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो जितना आप
डाउनवर्ड जाएंगे आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सरफेस के ऊपर जीरो होगा प्रेशर बिकॉज एच इज जीरो, सो प्रेशर विल बी जीरो. इट इज एक्सपोज टू एटमोसफेयर, ओनली एटमोस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करेगा. लेकिन जब हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस यूज करेंगे तो उसमें गेज प्रेशर हम यूज मेजर कर रहे होते हैं, वो आपको जीरो वैल्यू देगा. और जितना आप बॉटम की तरफ जाएंगे आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. Now let's do a numerical related to this concept of pressure head. An open tank contains water 1.4 meter deep covered by a 2-meter thick layer of oil whose specific gravity is 0.855. What is the pressure head at the bottom of the tank in terms of a water column? आपके सामने फिगर है. ये एक कंटेनर है जो ओपन है फ्रॉम टॉप. इसमें दो लिक्विड्स हैं. बॉटम पे आपके पास वाटर है जो 1.4 मीटर की डेप्थ तक है और इसके ऊपर ऑयल की लेयर है जिसकी थिकनेस है 2 मीटर. ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बता दी गई है 0.855. वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप फेमिलियर हैं, 1 होती है. आपसे प्रेशर हेड की वैल्यू पूछी गई है एट द बॉटम ऑफ द टैंक इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम. ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इसको आप इंटरफेस बोलेंगे, जहाँ पे दो डिफरेंट लिक्विड्स मीट हो रहे हैं. इसको इंटरफेस बोलेंगे. सो इसको हम यहाँ पे जो प्रेशर है उसको पी आई से डिनोट कर रहे हैं और बॉटम पे जो प्रेशर है उसको पी बी से भी डिनोट कर सकते हैं या पी टोटल से भी डिनोट कर सकते हैं. दिस इज गैमा ओ मीन्स स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल एंड दिस इज गैमा डब्ल्यू मीन्स स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर. सिमिलरली यहाँ पे H आपको गिवन है 2 मीटर, HO for depth of oil and HW depth of water 1.4 meter. Now let's move towards its solution. We all are familiar with specific weight of water, which is 9810 Newton per cubic meter or 9.81 kilo Newton per cubic meter. So how we can calculate specific weight of oil by using the definition of specific gravity. Specific gravity is ratio of specific weight of liquid under discussion with a specific weight of water. So we can calculate specific weight of oil by multiplying its specific gravity with specific weight of water. 0.855 is specific gravity of oil as is given in question, and 9.81 is specific weight of water. So upon multiplying we get 8.39 kilonewton per cubic meter as specific weight of oil. For interface, और इंटरफेस पी आई इक्वल्स गैमा एच, अभी हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ी थी, पी इक्वल्स टू गैमा एच, उसको हम यूज़ करेंगे. इंटरफेस पे सिर्फ इंटरफेस तक सिर्फ ऑयल था इसलिए सिर्फ ऑयल की वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ होंगी इंटरफेस पे. गैमा ऑफ ऑयल इंटू एच ऑफ ऑयल. गैमा ऑफ ऑयल आपने यहाँ पे कंप्यूट किया 8.39 और एच ऑफ ऑयल फिगर में क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट में विच इज़ 2 मीटर. सो 8.39 इंटू 2 इज 16.78 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे दोनों प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे. फॉर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल पी आई ओवर गैमा डब्ल्यू. ये जो आपके पास ऑयल का प्रेशर आया है इसको आप वाटर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे. वो आप कैसे करेंगे? वही डेफिनेशन आप यूज करेंगे, P इक्वल्स टू गैमा एच, बट अब आपने H कंप्यूट करना है फ्रॉम दिस P. तो H कंप्यूट करना है ऑयल का, ऑयल इक्विवेलेंट पी आई ओवर गैमा डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ आपने इक्विवेलेंट वाटर इक्विवेलेंट चूंकि कैलकुलेट करना है इसलिए आप यहाँ पे ऑयल का गैमा नहीं बल्कि वाटर का गैमा यूज होगा. सो 16.78 ये वैल्यू है डिवाइड बाय गैमा ऑफ वाटर 9.81, इट इज 1.71 मीटर. So H
अब आपके पास जो आपसे प्रेशर हेड पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम या वाटर इक्विवेलेंट, वो किसके इक्वल होगा? हेड ऑफ वाटर प्लस हेड ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। इट इज इक्वल टू 1.4 प्लस 1.71। 1.4 क्या चीज़ है? 1.4 वाटर की थिकनेस है, दिस प्लस 1.7 क्या थी? इस ऑयल को का जो आपका हेड था उसको जब आपने वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है वाटर इक्विवेलेंट में, तो वो 1.7 वैल्यू बनती है। 1.7 प्लस 1.4 टोटल हेड आ जाएगा वाटर का एट बॉटम, इट इज 3.11 मीटर। ऑल्टरनेट तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो बॉटम के ऊपर प्रेशर आप इकट्ठा कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉटम के ऊपर प्रेशर ऑयल की वजह से होगा प्लस वाटर की वजह से होगा। ऑयल की वजह से जो प्रेशर होगा गैमा ऑयल इंटू एच ऑयल प्लस वाटर की वजह से गैमा वाटर इंटू एच वाटर। गैमा ऑयल इज 8.39, एच ऑयल इज 2 given in statement, plus gamma water is 9.81 and H water is 1.4. Upon solving, we get pressure at bottom as 30.51 kilonewton per meter square. इसको अब आपने प्रेशर हेड यहाँ से क्या लिए, प्रेशर की वैल्यू आई है आपसे क्वेश्चन में प्रेशर हेड पूछा गया है। सो प्रेशर हेड इज डिफरेंट देन प्रेशर। प्रेशर हेड इज एच। एच आपने कैलकुलेट करना है, वो कैसे होगा? P इक्वल्स टू गैमा एच और H इक्वल्स P ओवर गैमा, और गैमा किसका यूज करना है? वाटर का। सो प्रेशर की वैल्यू ये है 30.51 डिवाइड बाय 9.81 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 3.11 मीटर। चाहे आप फर्स्ट प्रोसीजर अडॉप्ट करें या सेकंड प्रोसीजर, सेम आंसर आएगा प्रेशर हेड का बॉटम के ऊपर 3.11 मीटर। Now let's discuss some new terms or new definitions of pressure: absolute pressure, atmospheric pressure, gauge pressure. So first of all, atmospheric pressure. It is force per unit area exerted against a surface by weight of air above that surface. It is also called as barometric प्रेशर। जैसे मैंने आपसे कहा था ओपन कंटेनर है तो सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो उसके ऊपर जो भी एयर है उसके वेट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, और इसको अदर वर्ड्स में बैरोमीट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज गेज प्रेशर। इट इज द प्रेशर measured with the help of pressure measuring instrument in which the atmospheric pressure is taken as datum. जिस चीज को हम datum ले लेंगे वो वैल्यू 0 हो जाएगी। Datum means reference from which measurements are made. So gauge pressure में atmospheric pressure datum है, यानी atmospheric pressure की वैल्यू 0 है, और बाकी जो भी pressure होगा वो उस liquid का pressure होगा। So gauge pressure is pressure measured with the help of pressure measuring instruments. Next is absolute pressure. It is the pressure equal to the sum of atmospheric and gauge pressure. ये जो दो आपने प्रेशर की टाइप्स पढ़ी हैं, इनको अगर आप सम कर देंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। और इफ वी मेजर प्रेशर relative to absolute zero means perfect vacuum, we call it absolute pressure. What is vacuum? If the pressure is below the atmospheric pressure, we call it as vacuum. Mathematically, P absolute equals P atmosphere plus P gauge. So this is last topic of our today's lecture. In next lecture, we will discuss in detail various pressure measuring devices like barometer, Bourdon gauge, pressure transducer, piezometric column, and most important, manometers.